بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، آج ہم آپ کا IAS کا ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ ان کے حوالے سے تھوڑی سی آپس میں بات کریں گے کہ وہ کیسے خلیفہ تھے، کیسے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی تاریخ میں کیا رول پلے کیا۔ ٹھیک ہے؟ بورڈ کی طرف دیکھیے ذرا، ہم نے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے بنائے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، دوسرے خلیفہ راشد تھے اور آپ کے والد کا نام حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کے والد کا نام، جو کہ قریش کے ایک بہت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ گڈ۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فوراً اسلام قبول نہیں کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور تو سب سے پہلے کنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مردوں میں سے، پتہ ہے آپ کو؟ جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا مرد حضرات میں سے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت خلاف تھے، دشمن تھے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور اسلام کے بھی۔ اور اسی سلسلے میں جب آپ کو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو بہت شدید غصہ تھا، تو آپ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے نا؟ تو کیا واقعہ ہوا تھا وہاں پہ پھر پتہ ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتے دار حضرت عبداللہ میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بہنوئی اور تمہاری بہن نہ اسلام قبول کر دیجیے۔ وہ اپنے گھر میں گئے تو وہ نہ چھپ کر کے نہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا کیا آپ پڑھ رہے جو انہوں نے دکھایا، تو وہ انہوں نے کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہن کو مارنے لگے۔ جب حضرت ان کی بہن جب ان کو بچانے کے لیے آ گئی، وہ بھی زخمی ہو گئی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا پڑھ رہے ہو، مجھے سناؤ جو بھی پڑھ رہے ہو۔ پھر انہوں نے سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ تھوڑا سا دور ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہاں کیا لینے آئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے آقا، میں کلمہ پڑھنے آیا کہ آپ مجھے پڑھاؤ گے؟ یعنی اس واقعہ کا، قرآن پاک کی تلاوت کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ فوراً ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا دل ایمان لے آیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی برکت ہے، کتنی اس میں تاثیر ہے کہ چاہے کوئی مسلمان کتنا ہی دل کا سخت کیوں نہ ہو اور اس کو برا بھلا کیوں نہ کہتا ہو، لیکن جیسے ہی وہ یہ مقدس کتاب کے کلمات سنتا ہے تو اس کے دل پہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے یہ والا جو واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اچھا یہ بتائیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو کیا اس کے بعد اسلام پہ کوئی بہت واضح فرق ہوا تھا؟ مسلمانوں کی قوت طاقت میں کوئی فرق پڑا تھا یا ایسی چیز ہی تھی صورتحال جیسے پہلے تھی؟ نام فرق پڑا تھا۔ اوکے، کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نہ خود مسلمان تھے اور نہ کسی کو کہتے تھے کہ ہر ایک انسان کو کہتے تھے تم اسلام قبول نہ کرو، تو لوگوں کے دل میں خوف آ گیا۔ انہوں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے سب کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ترغیب دیتے تھے۔ اور چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کی وجہ سے مکہ میں بہت زیادہ مشہور تھے، تو اس وجہ سے مسلمانوں جو وہاں کے عوام تھے، مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان پر آپ کا کافی زیادہ رعب اور دبدبہ تھا، جس کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس سے مسلمانوں کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو ایک باقاعدہ قوت کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔
आपको पता है इससे पहले जब मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे तो वो उन्हें इबादत भी, अल्लाह ताला की इबादत भी छुप कर करना पड़ती थी, पता है ना? क्योंकि एक तो कुफार मक्का उनको तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ होते थे, तो इस वजह से। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर उसके बाद जब वो मुसलमानों को लेकर खाना काबा में पहली दफ़ा उन्होंने बाजमात नमाज अदा की और बाकायदा ऐलान करके अदा की कि हम नमाज अदा करने लगे हैं, ठीक है। ये एक इतनी बड़ी कामयाबी थी कि इस वाक़े के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब दिया था। इससे पहले उन्हें मतलब हक और बातिल में फर्क करने वाला है ना? जी बिल्कुल, फ़ारूक का मतलब है हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। ये देखें बोर्ड पे भी हमने लिखा हुआ है। मैम ने इस महीने बोर्ड से ही देखा है। ठीक है। इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा बने थे मुसलमानों के। फिर उनकी वफ़ात के बाद ये हुआ कि लोगों ने, मुसलमानों ने बाहमी इत्तफाक़ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा मुकर्रर किया था। और ये वो दौर था जहाँ से बहुत सारे मुसलमानों की जो थी कानूनी सूरत हाल और इसके अलावा अमन व अमान की जो सूरत हाल थी उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में। क्योंकि उन्होंने कौन से अहम शोबे कायम किए थे अपने दौर हुकूमत में, पता है आपको? मैंने पुलिस का शोबा कायम किया था और अदालतें कायम की थी गुड। और काज़ी मुकर्रर भी किए थे और उनके औकात भी मुकर्रर कर दिए थे। और इसके अलावा उन्हें अपनी आवाम की इस कदर फ़िक्र होती थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि वो बाकायदा रात को गलियों में चलते फिरते थे और देखते थे कि मेरी आवाम जो है, मेरी जो राया है, वो किस हालत में ज़िंदगी बसर कर रही है, ठीक है। यानी आजकल के दौर की सूरत हाल नहीं थी कि जिसके जो हाथ लग रहा है बस लूट मार मचाओ और अपनी तिजोरियाँ भर लिए जाए। ये वाली सूरत हाल नहीं थी मुसलमानों के दौर में, इस्लाम के आगाज़ के दौर में। अगर वो देखें खलीफा क्या होता है, जैसे आजकल के दौर में अगर आप देखें हमारे वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, जो कि किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, ऐसा ही है ना, सियासत है ना ये। तो उस दौर में जो खलीफा होता था वो किसी भी इलाके का या किसी भी खित्ते का नज़्म व नस्क चलाता था। जितना भी उसके शोबे थे, ज़िंदगी इसके मामलात थे, वो सारे उसकी निगरानी में तय पाते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी आवाम की इस कदर फ़िक्र होती थी कि एक दफ़ा उन्होंने फरमाया कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाए तो क़यामत के दिन मेरे से उसके बारे में भी सवाल होगा। देखें किस कदर खौफ़ खुदा था उस वक्त के मुसलमान लीडर में, उनके दिलों में अल्लाह ताला की कितनी मोहब्बत, कितना खौफ था कि उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर उनके ऊपर यह ज़िम्मेदारी दी गई है तो उन्होंने इसको कितनी अहसन तरीके से, कितनी प्लानिंग के साथ उन्होंने इसको जो है वो अदा करना है, निभाना है इस ज़िम्मेदारी को। क्योंकि ये इतनी आसान बात नहीं होती बेटा। ये कहने को बड़ा अच्छा फील होता है कि आपके पास कोई बड़ा ओहदा आ गया है या आपको किसी मर्तबे पर फाइज कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में जिसके पास ये होता है उसकी ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है और वो अल्लाह ताला की बारगाह में उतना ही ज़्यादा जवाबदेह भी होता है, ठीक है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने इसी वजह से ये बात कही थी कि आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये फरमाया था, जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है, शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। देखें कि मतलब ना सिर्फ मक्का के लोगों में बल्कि ये समझ लें आप कि उनका इस कदर वो बारूब शख्सियत थे, इस कदर उनका माशाल्लाह से। एक चीज़ होती है आपके पास ज़ाहिर ताकत होना, ठीक है, आपके पास बहुत सारी मतलब हथियार हैं, सब कुछ है दुनियावी लिहाज से, वो चीज़ नहीं थी। ये सब कुछ जो इनके बारे में मैं बातें कर रही हूँ ये सब कुछ उनकी शख्सियत का हिस्सा था, ठीक है। ये उनके अदात व अतवार थे, उनका इखलास था, उनके किरदार की खूबसूरती थी, उनके किरदार में इतना रोब और दबदबा था, इतनी ताकत और क़ुव्वत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हवाले से ये बात फरमाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने तकरीबन 10.5 साल तक मुसलमानों के वो खलीफा रहे थे। 10.5 साल तक उन्होंने
मुसलमानों पर खिलाफत की थी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो थीं वो इंतहाई खूबसूरती से अंजाम दी, बहुत अहसन तरीके से अंजाम दी और बहुत ज़्यादा खौफ खुदा के तहत अंजाम दी कि हर बात का उनको एहसास होता था कि छोटी से छोटी बात भी जो अवाम के हवाले से होती थी वो उसको भी मद्देनज़र रखते थे और उसके हवाले से भी बाकायदा हिकमत अमली, बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत काम किया करते थे। एक तो आज लाइट ऑफ हो गई है, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है, चलें थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं। एनीवेज़, हम बात कर रहे थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के हवाले से। तो 10.5 साल तक हुकूमत की। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि जब आप फजर की नमाज़ अदा कर रहे थे तो एक ग़ुलाम था, क्या नाम था उसका? अबू लोलो फ़िरोज़ नामी एक ग़ुलाम था जिसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर हमला किया था और आप शदीद ज़ख्मी हो गए थे। जी बिल्कुल, फ़जर की नमाज़ अदा कर रहे थे जब उसने हमला किया था तो आप शदीद ज़ख्मी हो गए थे और काफ़ी दिन तक आप शदीद ज़ख्मी हालत में रहे, लेकिन वो ज़ख़म इतना गहरा था और आप इस कदर तकलीफ़ में थे कि उसके नतीजे में यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के मरतबे पर फाइज़ हुए थे। यानी फ़ौरी तौर पर शहीद नहीं हुए थे बल्कि काफ़ी दिन तक आप ज़ख्मी हालत में रहे, लेकिन वो ज़ख़म बढ़ता गया और बिलाखिर यकम मुहर्रमुल हराम और 24 हिजरी को आपकी शहादत हुई थी। बेटा, ये वो हुक्मरान हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि उनके बाद के आने वाले तमाम हुक्मरानों के लिए एक मशअल राह हैं। अगर आप इनको और ज़्यादा इनकी तारीख़ का मुतालिया करें, इनके दौरे हुकूमत के हवाले से और ज़्यादा डिटेल में अगर हम इनको सर्च करें तो हमें पता चलता है कि आजकल के मुसलमान हुक्मरानों के लिए उसमें किस कदर उम्दा हदायत मौजूद हैं कि नज़्म व नस्क़ किसी भी मुल्क का चलाने के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन एक मुसलमान हुक्मरान के लिए जिनका जानना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि उन पर अमल करना भी ज़रूरी है। और ये किस बात की थी, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गलियों में चलते फिरते थे, रात के वक्त अपनी आवाम की खबरगिरी करते थे। इससे पहले आप देखें, हमने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना, आपने भी पढ़ा बहुत शुरू से, आप लोगों की IAS की बुक्स में वो वाक़या दर्ज है, वो जो एक बुढ़िया वाला वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सामान लेकर दूसरे मुकाम तक पहुंचाया था, हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानती थी और उसने सिर्फ आपका सुन रखा था। जी बिल्कुल, फिर जब वो बीमार हुई आप उनके घर गए, उनकी देखभाल की थी। देखें, यानी खुलफाए राशिदीन ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से अमल करते हुए देखा अपनी ज़िंदगी में, फिर जब उनके बाद का दौर आया तो खुलफाए राशिदीन की पूरी कोशिश होती थी कि वो भी उसी तरीके से अपने जो मामलात ज़िंदगी हैं उनको निभाएं। जी बिल्कुल, लिहाजा कोशिश हमारी भी यही होनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को फॉलो करें, उसकी पैरवी करने की कोशिश करें और उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौरे हुकूमत का जिस कदर हो सकता है मुतालिया करें, छोटे से छोटे मामलात को देखें कि उन्होंने कैसे उनको डील किया और फिर उसी हिकमत अमली को अगर हम आज के दौर में अपना लें तो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं हुकूमती सतह पर जो कि खुद ब खुद हल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए किस एक चीज़ की ज़रूरत है? इखलास की। जब तक हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जिसके दिल में आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दर्द हो और वो सही माने में एक अच्छा लीडर होने का सबूत दे सके, तब तक ये मसले मसाइल हमारे जो चल रहे हैं मौजूदा दौर में ये हल नहीं हो सकते। ठीक है, अब आज के टॉपिक के हवाले से आपको सारी बातें समझ में आ गई। थोड़ा सा हमने इसको ब्रीफली करने की कोशिश की है, जो भी अहम पॉइंट थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा हमारा लंबा टाइम हमें चाहिए इस काम के लिए। कोई कन्फ्यूजन इस हवाले से? चलें बेटा, आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।